Hello students, today I am going to take the class on parts of speech. So, we have learned to construct sentences and we know that words when we put in their right places and they make a proper sense is what we call a sentence. Alright, now these words are basically they are divided into 8 parts. Each of these words which form or which we put together, alright, to make a proper sense is what we call a sentence, and these words are divided into 8 groups. So, these groups of words is called the parts of the speech. What we talk, what we write is the speech, and the words that are used to construct that speech are divided into 8 parts. So, parts of speech is words that are used to construct a sentence is divided into 8 parts. Alright, this is important. 8 parts. Alright, so words that are used to construct a sentence is divided into 8 parts, or we can say parts or class. Alright, these 8 class or part, whatever it is, okay, we are going to take class. That's a better word. It sounds better. These 8 classes are said to be parts of speech. Alright, so we will go through it again. Words that are used to construct a sentence is divided in 8 parts or class. Full stop. These 8 classes are said to be parts of speech. Alright, so this is a definition for what is parts of speech. Definition. Alright. I'll go through it again. Words that are used to construct a sentence is divided into 8 parts or class. These 8 classes are said to be the parts of speech. Alright. Now we will move on and see what are these 8 parts of speech. Alright. Now, so we will divide those words, or what we said earlier was, we will see the 8 classes of the parts of speech. So, beginning with number 1 is noun. N-O-U-N. Okay, I am writing this way so you can easily remember this. This will be number 1. Noun. Number 2, it's easy to remember that first is noun. Then we will add pronoun. So, noun is there, we will add pro to it. Pronoun. Pronoun. Okay. Number 3, noun. For supportive of noun and pronoun, we will add adjective. Adjective. Alright. This is the third one. So, noun, pronoun, adjective. Now, we will have the fourth one,
verb, adverb, alright, verb, adverb. Now 3. The rest of the 3 are, okay, we will start with preposition, alright, preposition, conjunction, and the last one is interjection. So, alright. So, 5, 6, 7, 8. Now, we will again go through the 8 parts of speech. These are the 8 classes of words. Those words with which we construct a sentence. Those words are divided into 8 classes. Alright, each word in a sentence is very important. If we don't put them in the right places and we don't mean them properly, अगर सही ढंग से सही क्रम से हम लोग शब्द को नहीं बिठाते हैं और उनके जो मतलब होते हैं वो अगर सही नहीं हुआ तो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर वही शब्द हम लोग वही वर्ड्स हम लोग सही क्रम में बिठाते हैं और जो मतलब निकल आता है बाहर वो अगर सही रहा तो हो जाता है कंप्लीट सेंटेंस। तो 8 class of words or the parts of speech are: first noun, second pronoun, third adjective, fourth is verb, fifth adverb, sixth is preposition, seventh conjunction, and the last one is interjection. Remember, it's interjection. There are people whom I know, whom I have heard say injection. Alright, so don't, it's not an injection. Interjection. So noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So these are the 8 parts of speech. Alright, now what we'll do is we will see them separately. अभी हम लोग ये 8 जो parts of speech हैं इनको एक एक करके देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कुछ भी लिखे इंग्लिश में तो ज्यादातर हम लोग सेंटेंस ही यूज करते हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है, ये जो 8 भाग हम लोग देखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऑलराइट, एडजेक्टिव, फिर आता है आपका प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब अगर सही तरीके से सही ढंग से हम लोग नहीं बिठाते हैं तो एक सेंटेंस गलत हो सकता है और उसका जो मतलब आएगा वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो सही क्रम में वर्ड्स बिठाने मतलब सही क्रम में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 क्लासेस हैं उनको सही तरह जो बिठाते हैं हम लोग, ऑलराइट, उसी से एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसी से एक सेंटेंस का जो मतलब होता है वो कंप्लीट होता है। सो we will start with first noun. सबसे पहला होता है नाम। नाम क्या है? जो हम लोग नाम देते हैं, जो नाम हम लोग देते हैं उसे हम लोग नाउन कहते हैं। When we name a person, place, an animal or thing। ठीक है, तो नाउन क्या है? When we name, हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं नाउन उनके भाग, तो फिर से ये एक रिवाइज है। ठीक है, एक रिवीजन है, दोहरा रहे हैं फिर से
ताकि आप लोगों को ये ब्रश हो जाए, ये याद रह जाए कि अच्छा ये था। ठीक है। नाउ व्हेन वी नेम अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग, जो नाम हम लोग देते हैं, एक बेंच, एक पेन, एक पेंसिल, एक चीता, एक कबूतर, जो भी है, व्हाट आर द नेम्स वी गिव टू द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ऑलराइट, इज कॉल्ड अ नाउन। दूसरा क्या है? दूसरा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ऑलराइट। लेट्स से विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, फुल स्टॉप। ही प्लेज फॉर इंडिया। तो ये जो ही है, ये विराट कोहली को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। हम लोग विराट कोहली की जगह जब दूसरे सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं तो ही देके उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। विराट कोहली जो है उसी को हम लोग ही बिठाकर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बोल रहे हैं, उन्हीं को। ठीक है। तो ये जो ही हो गया, विराट कोहली की जगह जो बैठ रहा है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। विराट कोहली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, ऑलराइट, फुल स्टॉप। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सो ही विल बी द प्रोनाउन फॉर विराट कोहली, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। फिर प्रोनाउन क्या हो गया? वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, विराट इज अ ग्रेट बैट्समैन, फुल स्टॉप। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है। तो सेंटेंस ये है, विराट जो है हम लोगों का प्रॉपर नाउन है, एक नाम है एक इंसान का, ऑलराइट। प्रॉपर नाउन या फिर नाउन भी बोल सकते हैं अभी के लिए, स्पेसिफिकली ये प्रॉपर नाउन है, एक इंसान के नाम। विराट, विराट इज अ ग्रेट बैट्समैन, हो गया, फुल स्टॉप। ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये जो ही है, ये ही हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है। सो वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज व्हाट वी कॉल अ प्रोनाउन। तो हम लोगों का नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अभी थर्ड में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ADJECTIVE। तो अब ये एडजेक्टिव क्या है? ऑलराइट, वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है? जो वर्ड्स एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को सही माने देता है, सही मतलब उसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक एडजेक्टिव। ठीक है। सो आई विल टेल वंस अगेन व्हाट इज एडजेक्टिव। वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन इज व्हाट वी कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वर्ड्स दैट एड meaning to a noun or pronoun is called an adjective. Alright, words that add
मीनिंग मतलब एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन जब एक सेंटेंस में हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको और भी माने, उसमें और भी मतलब डालने के लिए जो वर्ड्स हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स जुड़ने से एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन का सही मतलब या फिर उसे मतलब सही दिशा मिलता है एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को, तो वो वर्ड्स हम लोग कहते हैं एक एडजेक्टिव। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यही नाम सेम रहेगा, विराट। विराट कोहली को हम लोग विराटी कहते हैं शॉर्ट में। विराट इज अ गुड क्रिकेटर, ठीक है, फुल स्टॉप। विराट इज अ गुड क्रिकेटर। यहां पर नाउन क्या है? विराट। विराट इज द नाउन। ऑलराइट, इज अ गुड क्रिकेटर। कैसे क्रिकेटर है वो? हाउ डज ही, व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर इज विराट? तो ये गुड, इज अ गुड क्रिकेटर। ये गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। विराट इज अ गुड प्लेयर, गुड क्रिकेटर, सॉरी, विराट इज अ गुड क्रिकेटर। सो नाउन इज विराट इज अ गुड, जो एक क्वालिटी है, ठीक है। कैसे तरह के क्रिकेटर है वो? गुड क्रिकेटर। तो गुड हो गया आपके एडजेक्टिव और विराट है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो नाउन को जो एक गुण, एक वर्ड जो जोड़ने से ये नाउन का सही दिशा मिलता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर इज विराट? अ गुड क्रिकेटर। सो गुड हो गया आपके एडजेक्टिव। ऑलराइट, सो अभी तक के लिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया। नाउन हो गया वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड, ओके सॉरी, नाउन इज दैट वी गिव अ नेम। जब हम लोग नाम देते हैं एक पर्सन, एक एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग, इज व्हाट वी कॉल अ नाउन। प्रोनाउन इज वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऑलराइट, नाउन या नाउन के बदले में जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव है वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू अ नाउन और ए प्रोनाउन। सो जो शब्द एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को और भी डिस्क्राइब करता है, सही मायने में जुड़ने से उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाता है एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था? विराट इज अ गुड क्रिकेटर। सो विराट हो गया आपका एक नाउन और गुड हो गया आपका एक एडजेक्टिव। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि और 5 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, द क्लास ऑफ वर्ड्स। ऑलराइट, अभी हम लोग 4th क्लास ऑफ वर्ड्स देखेंगे या फिर 4th पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। सो एक वर्ड क्या है? जो वर्ड हमें ये बोलता है कि ये सिखाता है कि एक, हम लोग पढ़े हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। वर्ड को हम लोग डूइंग वर्ड भी कहते हैं। जो काम, जो एक्शन जो कर रहा है एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, सीता इज सिंगिंग, सीता क्या कर रही है? सिंगिंग। सो सिंगिंग इज लाइक द वर्ड। ऑलराइट, सो let's see and check the definition of verb. What is verb? Verb is said to be, it tells us about the doing word of the subject, ठीक है। It tells us about the doing word of the subject. Subject क्या है? एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सो इफ आई टेल सीता इज सिंगिंग, तो क्वेश्चन यही होगा
सीता सब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है सीता। क्या कर रही है, व्हाट इज सीता डूइंग, शी इज सिंगिंग। तो सिंगिंग जो है, एक्सक्यूज मी, जो सिंगिंग है वो है आपका डूइंग वर्ड। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज सिंगिंग। तो सिंगिंग हो गया आपका एक वर्ड। ऑलराइट, नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते तब आपको समझ में आ जाएगा। दे आर राइटिंग लेटर्स। ऑलराइट, दे आर राइटिंग लेटर्स, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। सो दे यहां पर है सब्जेक्ट, कौन लिख रहा है चिट्ठी, दे। सो दे हो गया आपका सब्जेक्ट। वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर राइटिंग। ये राइटिंग हो गया आपका वर्ड, ये डूइंग वर्ड है। सो सब्जेक्ट है दे। ऑलराइट, वो लोग क्या लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स। वो लोग क्या लिख रहे हैं, राइटिंग लेटर्स। सो राइटिंग इज अ डूइंग वर्ड। ऑलराइट, दे आर राइटिंग, एक एक्शन है, आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइटिंग हो गया आपका वर्ड। सो दिस इज वर्ड। नाउ वी विल कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ इज एडवर्ब। तो अगर आप जल्दी से भूलना नहीं चाहते तो ये याद रखिएगा, पहले आता है नाउन, हम लोग नाम देते हैं। फिर होता है प्रोनाउन, जब हम लोग नाउन के जगह कोई वर्ड बिठाते हैं, इट, ही, दे, देम, ठीक है, अस, आवर्स, देयर्स, ये सब हो गया आपका प्रोनाउन। ऑलराइट, फिर आता है एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को सही दिशा देता है, जो जुड़ने से और भी महत्व बढ़ जाता है नाउन और प्रोनाउन का। ऑलराइट, सो वो हो गया आपका एडजेक्टिव। फिर आता है आपका फोर्थ वन, वर्ड। वर्ड क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द डूइंग वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट है जो, ठीक है, जो ये क्वेश्चन करता है कौन। एक सेंटेंस में जो कौन ये सवाल आप लोगों को आंसर देता है, ये होता है आपका सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या था, सीता वॉज सिंगिंग, और दे आर राइटिंग लेटर्स। कौन लिख रहा है, दे, वो लोग। तो वो लोग हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या लिख रहे हैं वो लोग, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर राइटिंग लेटर्स। तो राइटिंग हो गया आपका वर्ड। एडवर्ब क्या है, a word that is used, a word that is used to describe or add something to the meaning. A word that is used to describe or add something to the meaning of किसके किसके, verb, a verb हो गया, and adjective or another word, ठीक है। तो इसके एडवर्ब के बहुत सारे काम हैं, ये बहुत सारे काम एक साथ करते हैं एक सेंटेंस में। क्या क्या करते हैं वो, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और एड समथिंग टू द मीनिंग। तो इसे अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो एक शब्द जिसे हम लोग व्यवहार करते हैं टू डिस्क्राइब, जो दर्शाता है, जो और भी बताता है,
और एड समथिंग या फिर जुड़ता है टू द मीनिंग, वो मतलब के किसके मतलब के साथ वो डिस्क्राइब करते हैं या फिर और मतलब जुड़ता है। एक वर्ब के, एक डूइंग वर्ड है वर्ब के, एंड एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन और प्रोनाउन को और भी डिस्क्राइब करता है या फिर और भी मतलब जुड़ते हैं एक नाउन के साथ और एक प्रोनाउन के साथ, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या फिर अनदर वर्ड, एक सेंटेंस में दो वर्ड हो ही सकते हैं। तो एडवर्ब क्या करते हैं, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और एड समथिंग to the meaning of a verb, an adjective और another verb। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक लेट्स टेक एन इजी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है राखी lives in abroad। abroad मतलब देश के बाहर, विदेशी। abroad happy, ठीक है। राखी lives in abroad happily। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट या फिर नाउन भी कह सकते हैं, वो है राखी, नाउन। बेसिकली ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है। ऑलराइट, सो राखी लिव्स इन अब्रॉड हैप्पीली। एक डूइंग वर्ड क्या है, क्या करती है वो अब्रॉड पे, लिव्स। तो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। लिव्स इन होता है आपका एक प्रीपोजिशन, वो मैं अभी आऊंगा, ठीक है। अब्रॉड एक जगह है, रिमेंबर नाउन्स, वी नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। तो अब्रॉड एक जगह है, ये हो गया आपका एक नाउन। हैप्पी, वो कैसे वहां जी रही है, कैसे रह रही है, खुशी से। सो खुशी से जो है हैप्पी विल बी योर एडवर्ब। सो फिर से अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो ये कहता है कि वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड, उसे हम लोग कहते हैं एक एडवर्ब, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, this way you can see the board। all right, so what is an adverb? A word that is used to describe or add something to the meaning of a verb, an adjective or another verb is what we call an adverb। example क्या था, Rakhi lives in abroad happily। so Rakhi would be the noun। lives कैसे जीता है वो, कहां पर जीता, कहां पर रहती है वो, अब्रॉड। सो लिव्स वुड बी वर्ब, अब्रॉड इज अ नाउन एंड हैप्पीली इज द एडवर्ब। ऑलराइट, सो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द स्पीच एंड व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। सो नाम से ही एक तो जो है हम लोगों को एहसास होता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड जो कुछ शब्द से पहले अगर हम लोग बिठा देते हैं तो एक शब्द से दूसरे शब्द को जो एक संपर्क होते हैं उसे ये जोड़ देता है प्रीपोजिशन। सो लेट्स टेक द डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या है, एक शब्द जिसे जब हम लोग कोई नाउन से पहले बिठाते हैं या फिर एक प्रोनाउन से पहले बिठाते हैं टू शो इट्स रिलेशन, ताकि ये संपर्क जो है वो दिखाए
एक दूसरे शब्द से एक ही सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल क्या है, आई वेंट टू दिल्ली ऑन 15 अगस्त। तो आई हो गया आपका एक प्रोनाउन, ठीक है। वेंट हो गया आपका वर्ड, डूइंग वर्ड है। टू हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। दिल्ली क्या है आपका एक प्रॉपर नाउन, तो अभी के लिए हम लोग एक नाउन ही लिख रहे हैं इसे। ऑन फिर से एक प्रीपोजिशन। तो ये दो प्रीपोजिशन जो है टू और ऑन, ये दोनों ऐसे जगह बिठाना है ताकि सेंटेंस को एक सही मतलब आए, ऑलराइट, एक सही मतलब बाहर आए। आई वेंट टू दिल्ली ऑन 15 अगस्त। मैं दिल्ली गया था 15 अगस्त को। तो आई हो गया आपका प्रोनाउन, टू एक प्रीपोजिशन है, दिल्ली एक फिर से नाउन है, कॉमन प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक शहर का नाम है। ऑन हो गया फिर से प्रीपोजिशन, 15 अगस्त। सो दिस इज व्हाट अ प्रीपोजिशन इज, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। आई वेंट के साथ दिल्ली को जोड़ने के लिए टू, कब गए थे 15 अगस्त को, दिल्ली के साथ 15 अगस्त जुड़ने के लिए ऑन। तो ऑन और टू हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। अभी नंबर 7 के लिए 6 को मिटाना होगा, ऑलराइट। तो ये रहा हम लोगों का 6th जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हम लोग उसे कहते हैं कॉन्जंक्शन, ऑलराइट। कॉन्जंक्शन क्या, अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो क्या करते हैं ये कॉन्जंक्शन, एक वर्ड है जो एक वर्ड को या फिर बहुत सारे वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो 3, 4, 6 जो भी है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए, एक ही सेंटेंस में जोड़ने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ताकि सेंटेंस का सही मतलब बाहर आए, उसे हम लोग एक कॉन्जंक्शन कहते हैं। तो ये काइंड ऑफ ये गम जो होता है, ठीक है, एडेसिव का काम करता है, जुड़ता है एक के साथ या फिर एक से ज्यादा और दूसरे वर्ड्स। तो दो सेट ऑफ वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ये एक साथ जुड़ता है। तो उस जो जोड़ता है जो वर्ड, उसे हम लोग कहते हैं अ कॉन्जंक्शन, ऑलराइट। सो आई सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल वुड बी लायन is strong but elephants are stronger। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि शेर जो है वो स्ट्रांग है। तो शेर, लायन इज स्ट्रांग, ये तीन एक ग्रुप है, ठीक है। एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्गर, हाथी शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो दोनों ग्रुप या सेट ऑफ वर्ड्स है, ये तीनों हो गया एक सेट, एक ग्रुप, और एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्गर हो गया आपके दूसरे सेट, दूसरे ग्रुप। इन दोनों को जुड़ रहा है कौन, बट। तो बट हो गया आपके एक कॉन्जंक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। राज एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। राज एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो राज हो गया एक वर्ड, ठीक है, और राहुल जो है दूसरा है। आर बेस्ट फ्रेंड्स सेट ऑफ वर्ड्स है। तो एक साइड हो गया राज, राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये दोनों को कौन जुड़ रहा है, दोनों का दोस्ती जो है, बहुत अच्छी दोस्ती है इन दोनों में, जुड़ रहा है कौन, एंड। तो एंड हो गया आपका एक कॉन्जंक्शन, ठीक है। सो पहले एग्जांपल मैंने क्या दिया, लायन इज स्ट्रॉन्ग बट एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्गर। सेकेंड एग्जांपल क्या है, राज एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहां पर एंड एक कॉन्जंक्शन है
और यहां पर बट एक कॉन्जंक्शन है। तो ये है कॉन्जंक्शन का काम, ये एक ग्लू के काम करते हैं, एक एडहेसिव का, जो सेट ऑफ वर्ड्स और वर्ड के साथ या फिर दोनों सेट ऑफ वर्ड्स को एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। So this is what we call conjunction. Now we will go to the last parts of speech that we call is an interjection. So this is the last part of speech. We call it the interjection. All right. So what's an interjection? Words that expresses some sudden or strong feelings. All right. जैसे हर टाइम मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं कि आपको कोई एक 5 स्टार देता है तो आप खुश हो जाते हैं कि चलो एक 5 स्टार है, ये मेरे लिए है, मुझे खाना है। अगर वही इंसान आपको 50 5 स्टार देते हैं और कहता है कि बेटा जाओ तुम आज ये 50 5 स्टार है, ये पूरा आपका है, आप खा सकते हैं, तो जो एक्साइटमेंट होता है, जो खुशी होते हैं, वो हम लोग एक्सक्लेमेशन की ओर तौर पे जाहिर करते हैं। ऑलराइट, वी गिव एक्सक्लेमेशन मार्क टू दैट सेंटेंस। ऑलराइट, सो ये जो फीलिंग्स है, ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ऑलराइट, सडन एक फीलिंग्स है कि खुशी से उछल जाना। ऑलराइट, सो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, कुछ ऐसे शब्द है जो हम लोग का ये खुशी या फिर हम लोग का ये जो दुख होते हैं अचानक से बाहर आता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। Interjection. All right. So example is hooray. What's that? Hurrah! Exclamation. ये एक फीलिंग है खुशी के। कैसे हम लोग ये लिखते हैं? Hurrah! We won the match. ये एक खुशी जाहिर होता है, साधारण खुशी नहीं, बहुत खुशी, एकदम जी फाड़ के, मतलब हुर्रे वी वॉन द मैच। ऑलराइट, शायद मैं दिखा नहीं पा रहा हूं इतना खुशी, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें। ये जब एक्सेस हम लोग एक्साइटेड होते हैं खुशी से, तब ये हुर्रे वर्ड्स बाहर आते हैं और ये हम लोग लिखते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। सो हुर्रे वी वॉन द मैच इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सेसिव हैप्पीनेस, ऐसे खुशी नहीं, बहुत सारी खुशी एक साथ जब एक बार में बाहर निकल आता है, तो वी यूज हुर्रे वी वॉन द मैच, और इसे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क द्वारा चिन्हित करते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अलास, शी फेल्ड द एग्जाम। Alas, she failed the exam. ये दुख वाला बात है, मन भारी हो जाता है। Alas, she failed the exam, मतलब फिर से वो फेल कर गई। तो alas जो है और हुर्रे जो है, ये दोनों दो टाइप के, एक खुशी इजहार करता है, बहुत खुशी, हुर्रे वी वॉन द मैच, और दूसरा है alas, she failed the exam, ये दुख जाहिर करता है। लेकिन ये जो दोनों वर्ड्स हैं, हुर्रे और अलास, ये दोनों हैं आपके इंटरजेक्शन। सॉरी, ये आपके इंटरजेक्शन। तो अगर मैं दोहराऊं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि बेटा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बोलो तो क्या क्या है, तो शुरू से एकदम शुरू कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन, और लास्ट में आता है ये इंटरजेक्शन। तो दीज आर द 8 classes of parts of speech. So that's it for today. Alright, go to the video if you don't understand anything. Do the exercises as well. Practice at home. This is definitely very important. Alright, so please do study at home.